नमस्कार, देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ हैं समीर सोनी। कई सारी फिल्म्स, कई सारी वेब सीरीज में देख के आए हैं। कभी इन पे गुस्सा आया है, कभी बहुत प्यार आया है, कभी जब फैशन डिजाइनर बने ने देखा तो बहुत अचरज भी होता है। तो इतने सारे एक्सप्रेशंस के बीच जब समीर सोनी होता है तो हाउ डज इट फील लाइक? Good, yeah. They're just, matlab, every character I play is an extension of me. तो अगर कोई कैरेक्टर आपको प्ले करना है रियलिस्टिकली तो यू हैव टू फाइंड कुछ कॉमनैलिटी। उस कैरेक्टर में क्या ऐसी बात है जो आप जिससे आप रिलेट कर सकते हैं। टू मी that's the beauty of being an actor. You get to live so many lives. I look forward to being an actor because एक तो you can express whatever you want. In real life you can't always express yourself. अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो you can't always be angry. कंट्रोल करना पड़ता है। अगर रोना आ रहा है तब भी कभी कंट्रोल करना पड़ता है। बट एक्टिंग इज वन प्लेटफॉर्म, इसमें यू कैन एक्सप्रेस एनीथिंग यू वांट एज लॉन्ग एज द कैरेक्टर इज डूइंग इट। सो यू थिंक इट्स एक्टिंग बट इट्स एक्चुअली मी expressing myself. So for me acting is all about self expression and I love that. So agar wo main nahi kar pata to I don't know what will I do in real life. But in real life I'm very quiet and I don't express. So through my characters I'm able to do that. So that's nice. समीर, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए, खुद के लिए भी, क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं उनको हमेशा बोलना चाहिए, चाहे वो सिंगिंग के थ्रू हो, चाहे वो डांस के थ्रू हो या फिर एक्टिंग के थ्रू हो। तो भाई मेरी तरफ से तो मैं बोलूंगी आप पैदा ही एक्टिंग करने के लिए हुए हैं। Yeah, actually you'll be surprised. Actually मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी I think 8 साल की एज में। So I was extremely shy. I mean I'm not shy but I'm an introvert. तो मैं स्कूल में था तो हमारे स्कूल में at a very young age they would encourage कि आप या सिंगिंग में जाएं या थिएटर में जाएं, इसमें जाएं। सिंगिंग में कर नहीं सकता था तो मुझे थिएटर में जाना पड़ा। तो जब मैंने पहली बार I was 8 years old तो हमें कुछ एक वर्कशॉप दी गई कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है। And the day I did that I felt like, oh yeah, I mean I can do this and not be judged. Because when you are sensitive and you're shy, you're scared of people judging you. हाँ. अगर सबके सामने बोलना है थोड़ी शर्म आ जाएगी या क्या लोग क्या सोचेंगे। But when you're acting, लोग तुम्हारे बारे में नहीं सोचते हैं, they think about the character. So from that age, I pretty much knew I wanted to be an actor. So yeah, so from 8 years, so it's become part of my life. If I'm not acting, then I'm writing because I need to get my emotions out. feelings out. So so ये जो इंटेलिजेंस जिस तरीके से आपकी बातों से जाहिर होता है, मुझे ऐसा लगता है वही चीज आपके कैरेक्टर में भी दिखाई देती है जब आप कोई भी रोल प्ले करते हैं। अच्छा बुरा कैरेक्टर होता है, बट आपकी एक्टिंग में वो इंटेलिजेंस आती है। इसके पहले किसने ऐसा कहा आपको? हाँ, इंटेलिजेंस के बारे में लोग नहीं बोलते, बट दे से इट्स ऑनेस्ट। And it is because I personally believe if you're doing any scene, whether it's or any character, whether it's a love scene, a romantic scene, or angry scene, you have to feel it. It has to be, I mean, for that point in time, if I'm playing a romantic scene with a girl, I should be in love with that girl at that point in time. That is true love. Because when you feel that, then you can't do anything wrong. It is what we call being in the moment. तो आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो you are feeling it, and that is why it is so relaxing. So if you're playing a romantic scene or you're being anger, तो जितना आपके अंदर pent up emotion होता है वो बाहर निकलता है। People think कि यार he's a good actor, but point I'm just being myself. I'm just expressing myself through the character. So it's always honest. So that's one thing there. Oh, how beautiful, beautiful. बहुत सुंदर बताया आपने। चलिए काटल की बात करते हैं। Exactly क्या मीनिंग है और आपका रोल इसमें किस तरीके से लोगों के सामने आ रहा है? जहां तक कार्टेल का सवाल है, it's about the underworld in Mumbai, and I think it is dated in 70s 80s if I'm not wrong, 70s में, and it is about जो different gangs थे, different families थे, जिनका होता ना कि यार west of Bombay this family will control, south of Bombay this family will control in the underworld. And it is sort of the battle of power. किसके पास ज़्यादा power है? And them fighting against each other. So
and I'm playing the rich industrialist who, जो हमें जाहिर है जहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वहाँ पॉलिटिक्स भी ज्यादा दूर नहीं होती है. It is all intertwined. And how he uses अपनी power, अपने contacts to sort of manipulate all these underworld people because he's too smart. So जो इनको मैं कहता हूँ वो he is the master puppeteer जो कुछ नहीं करके भी बहुत कुछ कर रहा है, and people don't even realize ये क्या कर रहा है, ये किसकी साइड में, nobody knows. So it's a very शातिर किस्म का इंसान, बहुत शातिर और evil है, but it's fun playing it. क्योंकि रियल लाइफ में आप ऐसे नहीं कर सकते, तो रियल लाइफ में तो जेल में जाएंगे सीधा, तो स्क्रीन पे करने का मौका मिलता है. एंड जिसमें so it's very nice, it's very interesting. I'm getting to play something जो मुझसे बिल्कुल हटके है. हाँ. तो playing yourself is boring, मतलब क्या है यार, but आप अंदर से कोई ना कोई आप एलिमेंट निकालते हैं, like for example the coldness in you, so वो आप निकाल के उस कैरेक्टर में डालते हैं. And he's like I said, sinister है, बहुत ही शातिर है, और I don't know, you will love to hate him. अच्छा. अच्छा, थोड़ा सा इस बारे में बताइए. 70s 80s की कहानी है, तो आप के 70s 80s कैसे थे? आप किस तरीके से जिंदगी देखना चाहते थे? 70s 80s में 80s में स्पेशली मैं स्कूल में था. लाइफ बहुत अच्छी थी, लाइफ बहुत सिंपल थी. आजकल मैं अपनी बेटी को बोलता हूँ, तुम लोगों को तो मालूम भी नहीं क्या तुम लाइफ क्या होती है. हमारे पास, मुझे याद है, आई थिंक कलर टेलीविजन 84 में आया था. उससे पहले सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था. कोई आईपैड, कोई मोबाइल नहीं हुआ करता था. और टीवी पे भी आपको पहले कृषि दर्शन देखना पड़ता था, फिर संडे वो भी 6 बजे आता था, और रोज वो ब्लैक एंड व्हाइट से आता था, और संडे के संडे पिक्चर आती थी, फिल्म की आती थी. और मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं कोई 8-9 साल का था, तो हमारी जिस लेन में हम रहते थे, आई थिंक हम पहले लोग थे जिनके पास टेलीविजन आया था. तो बकायदा संडे को वहां पर हमारे हॉल में कुर्सियां लगती थी, ताकि लोग आएंगे, मेहमान आएंगे और बैठ के बिल के टीवी देखेंगे. इट वाज यूज्ड टू बी लाइक कहते हैं ना कि सोशल इवेंट, कि आज की संडे की फिल्म. फिर बीच में आधे घंटे का ब्रेक होता था, तो लोग खाना खाते थे, कोई खाना लाते थे. और मुझे याद है अच्छी तरह कि मैं छोटा सा था और लोग आते थे, और मेरी लेन में बहुत सारी लड़कियां थी. तो हम 3 भाई थे, तो हमें लड़कियों से बड़ी शर्म आती थी, तो हम चुपके से घुस जाते थे, कहते यार. सो आई थिंक 80s हमारा 70s 80s ऐसे ही निकला कि बेसिकली स्पोर्ट्स, कोई आईपैड नहीं है, कोई टेलीविजन नहीं है. स्कूल से आप आए, या आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जाएंगे, या आप थिएटर करेंगे, या स्पोर्ट्स खेलेंगे, और क्रिकेट खेलो, कुछ भी खेलो. शाम को आओ, फिर अपना शाम का नाश्ता, होमवर्क, और फिर सो जाना. लाइफ वाज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. और हाँ, अभी मेरी बेटी जब कंप्लेन करती है ना, ये वो पापा दिस, तो मैं कह रहा यार बेटा, हम जब थे ना तो हमारे पास एसी भी नहीं था, हम वो कूलर होता था उसमें पानी डाल के तो आई थिंक लाइफ वाज वेरी सिंपल. अब थोड़ा इनके लिए लग्जरी भी हो गई और कॉम्प्लिकेटेड भी हो गई है थोड़ी सी, मेरे हिसाब से. उसमें बड़ा क्लियर था कि यार लाइफ, भाई आप पढ़ाई करो, मेन चीज है लाइफ में. अच्छा, ग्रेड अच्छे आने चाहिए, ठीक है, मम्मी का कहना मान लो, कोई बदमाशी मत करो, अगर बदमाशी की तो पकड़े मत जाओ, बस. तो that used to be हमारा my 70s 80s and stuff. So लवली. तो उन 70 80s जीने के बाद अब छोटे से मोबाइल पे जब आप अपने आप को देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं जिंदगी जीते हुए, तो बहुत शेकिंग सा नहीं हो जाता है अंदर से? बिकॉज आई एम आल्सो द सेम काइंड ऑफ जनरेशन. I'll tell you honestly, मैं तो मोबाइल से इतना परेशान हूँ. मेरा मोबाइल हमेशा साइलेंट में रहता है, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि ये हो गया कि कि पहले आपके पास प्राइवेसी थी, अपना टाइम था. अब आप एक्सेसिबल हैं 24/7. अगर आपने फोन नहीं उठाया तो क्वेश्चन है, फोन क्यों नहीं उठाया? तो मैं बोलता हूँ क्या यार, मैं गले में फोन बांध के तो चलता नहीं हूँ ना, जहां पड़ा है.
कोई पेशेंस नहीं है हमारे पास। और अब अगर आपको बात करनी है ऐसे तो मोबाइल से, अगर आपको मैसेज भेजना है मोबाइल से, ईमेल चेक करनी है मोबाइल से, फिर अभी सोशल नेटवर्किंग आ गया मोबाइल से। तो छोटा स्क्रीन देख देख के ना मेरा सर दर्द है, यार क्या करूं मैं, बड़ा फोन लूं क्या करूं मैं। कई बार तो मन करता है छोड़ के वो पुराने नोकिया के फोन आते थे ना, बस वो काफी है मेरे लिए। ये मतलब या मतलब इसके बेनिफिट्स काफी हैं, बट कहीं पे लाइक आई सेड मेरा सोल्यूशन ये है कि मैं जैसे जब मैं शूटिंग करता हूँ मैं सेट पे कभी फोन नहीं ले जाता हूँ, वो मेरी वैनिटी वैन या ग्रीन रूम में रहता है एंड मेरा फोन साइलेंट पे रहता है। तो मेरी नीलम काफी बोलती है अरे किसी को इमरजेंसी हो तो क्या करेंगे क्या। मैंने कहा अगर ऐसी इमरजेंसी है कि आप आधा एक घंटा वेट नहीं कर सकते तो मैं हेल्प वैसे भी नहीं कर सकता हूँ। होता नहीं कि हाँ मगर क्योंकि पहले होता था ना यार ठीक है कि आपके बाद में वो बीपर आ गए, फिर आंसरिंग मशीन आएगी, आप पूरा दिन घूम के वापस आते थे, चेक किया किसने फोन किया फिर रिटर्न करो। अभी तो हर एक मिनट में मतलब फोन नहीं उठा रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। पेशेंस नाम की चीज कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर फ्लाइट 1 घंटा लेट हो जाती है लोग ऐसे शक्ल बनाते हैं पता ही दुनिया खराब हो गई। पहले टाइम में मतलब कि ठीक है फ्लाइट्स अगर होती थी लेट हो गई या उसमें ज्यादा ट्रेन से काम जाते थे हम। अरे जब बॉम्बे आए राजधानी से आया था मैं तो 24 घंटे लगते थे, सब पेशेंस थी। अब तो 5 मिनट 10 मिनट हर एक मिनट का वो हो रहा है, मतलब प्रेशर है। अभी भी आया मैसेज सर आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू। मैं कहा यार अभी तो 2 मिनट तो दे दे मेरे को, क्या हो गया। बट दैट इज लाइफ। अब ठीक है अभी हम वापस तो जा नहीं सकते, यू हैव टू अडेप्ट टू द न्यू सिचुएशंस एंड आई एम डूइंग माय बेस्ट, ट्राइंग टू डू माय बेस्ट कि किसी तरह टू बी रेलेवेंट एंड टू बी एबल टू फंक्शन। अभी मेरी डॉटर का होमवर्क ऑनलाइन आता है, यार मालूम ही नहीं, समझ ही नहीं आता कौन सा मैं ऐप यूज करूं, फिर ये आता है and she is about 8.5, वो मुझे बताती है पापा नो you have to go to this school app and then press this and this and मैं तो वेट कर रहा हूँ कब स्कूल स्टार्ट हुए, वापस जाओ यार तुम। ये मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा मतलब आप you're again in grade 3rd and 4th and 5th you feel like that way. but I can understand। और अभी जो इनको सिखाया जाता है जो हमें सिखाया गया था बहुत ही डिफरेंट है। इनको सिखाया जा रहा है कि हाउ टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट। मैंने बोला भाई ये कौन सा सब्जेक्ट है ये बता दो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, सोशल साइंस है क्या ये। नहीं पापा दिस इज व्हाट दे टीचिंग अस। आई एम लाइक ठीक है चलो। अच्छा आपकी एक बात बताते हैं, टेलीविजन पे भी ना आपको बहुत प्यार मिलता है, ओटीटी पे तो इन दिनों बहुत ज्यादा है। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग जब मोदी साहब जैसा कैरेक्टर मैंने आपको प्ले करते हुए देखा, आई वाज लाइक ओ वाओ, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था आपका रोल, बहुत सटल। आई मीन आई कुड सीरियसली रिलेट, दो इट वाज नॉट एग्जैक्टली दैट, बट जिस तरीके से उसको बताया गया था बहुत अच्छा था। तो उस बारे में बताइए, इतने बड़े शख्सियत को न बताते हुए भी जब बताना होता है तो कितना मजा आता है। मजा का पता नहीं, बट यू हैव टू बी केयरफुल, बट दैट इज द चैलेंज। आई मीन लाइक जैसे जब मैंने गे कैरेक्टर प्ले किया था फैशन में, उसमें यू हैव टू गेट इट अक्रॉस कि गे है बट नॉट बी स्टीरियोटिपिकल। तो मेरा हमेशा फोकस ही रहता है कि इफ द ऑडियंस कैन सी थ्रू आपका मेकअप, थ्रू योर एक्सप्रेशन, द रियल पर्सन। तो मेरा चैलेंज फॉर एग्जांपल इन फैशन आई कैन डेफिनेटली से बिकॉज़ दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग कैरेक्टर आई प्लेड, एंड दैट टू इन दैट टाइम। हाँ एंड उससे पहले किसी ने किया भी नहीं था वैसे। 99% वाज ऑलवेज की हेलो जो टिपिकल गे होता है। तो मेरा चैलेंज ये था कि क्योंकि वैसे भी इन आवर सोसाइटी होमोसेक्सुअलिटी को लोग आर नॉट दैट एक्सेप्टिंग। अब शायद बदल रहा है मगर आई थिंक हार्ट ऑफ इंडिया में अभी भी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है लॉन्ग टाइम उनके लिए। लाइक पेरेंट्स जनरेशन में जब मैं रोल कर रहा था मेरे को समझ नहीं आता कि मॉम डैड को क्या बोलूं कि मैं रोल क्या प्ले कर रहा हूँ। तो पूछे बेटे क्या कर रहे तुम। हाँ अच्छा इंटरेस्टिंग फैशन डिजाइनर है। तो एक बार मिड डे में हेडलाइन किसी न्यूज़पेपर हेडलाइन समीर सोनी टू प्ले गे कैरेक्टर। मैंने कहा अरे यार क्या बोल दिया तुमने। अपने माँ बाप को कैसे समझाऊं क्या होता है। So the focus is always कि you relate to the human being, not the externality. उसमें हल्का सा टच दे सकते हैं so that you can get the point across.
मगर जो इनसाइड का जो पर्सन है, दैट इज ऑलवेज माय फोकस एट लीस्ट, एंड समटाइम्स इट वर्क्स, समटाइम्स इट डजंट वर्क. सो नाइस. एक लास्ट सवाल. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, चूंकि आप बिग बॉस में भी रह चुके हैं, बिग बॉस अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी दिखाया जा रहा है. समीर, व्हाट इज योर रिएक्शन? व्हाई आई एम आस्किंग, फर्स्ट यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट. सेकंड, ओटीटी इज लाइक आपका साम्राज्य बढ़ता जा रहा है उसमें. आप गढ़ बढ़ता जा रहा है. इस पे आपका रिएक्शन चाहिए. ये ओटीटी एक तो ब्लेसिंग है एक तरह से, बिकॉज बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो आप नॉर्मली शायद टेलीविजन पे शेयर नहीं कर सकते, फिल्म्स पे शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ओटीटी में आप जो व्यूअर है अपनी प्राइवेसी में देख सकता है. अगर कोई अडल्ट फिल्म है, अगर टेलीविजन में आ रही है, आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं देख सकते. एंड बाय एंड लार्ज टेलीविजन इज स्टिल अ फैमिली प्लेटफॉर्म. थिएटर भी एक सोशल है, सब मतलब 500,000 लोग एक साथ देखते हैं. मगर ओटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपनी प्राइवेसी में जो चाहे देख सकते हैं. तो दैट वे इट हैज अ प्लेस, स्पेशली आजकल के टाइम में जहां पर लोगों को टाइम की कमी है. तो अपने फ्रीडम में ये भी नहीं है कि यार पहले तो नहीं यार सुबह रामायण आएगा, महाभारत आएगा, सुबह ही आएगा, सुबह ही उठना है, नहीं तो नहीं देख सकते. आप ओटीटी कभी भी जो भी देखना है देख सकते हो, कर सकते हो. सो इट इज अ वेरी, इट्स अ बोन, मतलब स्टोरी टेलिंग के लिए, क्रिएटिव लोगों के लिए. बट आजकल न्यूज में भी चलता रह रहा है कि देयर हैज टू बी अ लाइन दैट हैज टू बी ड्रॉन, दैट व्हाट यू कैन शो, व्हाट यू कांट शो. आई थिंक अभी ये इट इज लाइक अ न्यू इन्वेंशन. अभी वी आर एज अ सोसाइटी इंडिया में हम डील कर रहे हैं कि इसको यूज कैसे किया जाए. इसके प्लसेस भी हैं, माइनसेस भी हैं, right? So I think as a society we are trying to deal with that. कि there is no censorship. अगर censorship आई तो freedom of speech चली गई, तो कैसे संभालेंगी? तो balancing act हुआ. So I'm waiting. For example, जब पहले OTT स्टार्ट हुआ था, हर एक शो में जब तक गाली ना दो तो काम नहीं चलता था. If you notice the earlier show, और न्यूडिटी भी, बिकॉज क्या था कि सडनली फ्रीडम मिल गई थी. तो जो मेकर्स थे वो बोले थे यार जो मैं करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, अब मौका मिला. तो थोड़ी सेंसेशनलिज्म ज्यादा हो गई थी इनिशियली. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज पीपल आर, जो ऑडियंस भी है वो भी कह रहे हैं चल ठीक है ये हो गया ना, अभी गाली गलौज बहुत हो गया, न्यूडिटी बहुत हो गई, कंटेंट क्या है, अब क्या कहानी बता रहे. सो अब घुमा फिरा के हल्का इट्स सेटलिंग डाउन. And I think we will see more of it. कि you just can't sell a show basis of nudity और गाली, because पहले वो यूनिक था, यार तो गाली दे रहे क्या ऐसे. तो अब I think it's changing. So I think it's here to stay. ये कहीं नहीं जाने वाला है. Because I don't think I mean आप टेक्नोलॉजी में वापस नहीं जा सकते. तो मोबाइल्स, एप्स, iPad वगैरह सब रहेगा. जब तक ये रहेगा आपके पास टाइम की कमी है, आप वही देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं. अक्सर होता है मैं और नीलम अपने मतलब रात को सो रहे हैं, सोने से पहले वो अपना शो देख रही है, मैं अपना शो देख रहा हूँ. हालांकि मैं ज्यादा ओटीटी देखता नहीं हूँ, मैं ज्यादा अवॉइड ही करता हूँ. बट इट इज हियर टू स्टे. यू हैव टू अडेप्ट, लर्न कि इसके साथ हाउ टू डील विद इट, एंड देखते हैं. इट्स गुड. एज एन एक्टर आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम वेरी हैप्पी. और अगर ओटीटी पे बिग बॉस आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? अच्छा सॉरी, आपका टॉपिक मैं हट के डाइवर्ज हो गया. देखिए अब जहां तक बिग बॉस का सवाल है, मैं जब आया था बिग बॉस में सीजन 4 में, वो 9 बजे आता था जी. तो फिर भी वो एक फैमिली शो था, राइट. तो अगर आप देखेंगे पहले 4-5 सीजन थोड़े सोबर थे, क्योंकि आप कुछ उल्टा सीधा दिखा नहीं सकते थे और कोई उल्टा सीधा कोई बिहेव भी नहीं करता था इतना. उसके बाद वो 10:30 बजे आ गया, बिकॉज कंटेंट थोड़ा एजी हो गया, थोड़ा गाली गलौज, मारपीट, ये वो, तो वो थोड़ा ज्यादा हो रहा था. आई थिंक फॉर मी पर्सनली, कई लोग एंजॉय भी करते होंगे, मुझे पता नहीं वो. अब ओटीटी में आ रहा है तो भगवान जाने क्या होने वाला है. आई हैव नो आइडिया क्या दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे. ऑब्वियसली अभी तो मतलब टीवी में फिर भी आपके पास सेंसरशिप है, लोग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं. ओटीटी में क्या दिखाएंगे, और ये बात भी नहीं है कि क्या दिखाएंगे, लोग क्या करने को तैयार होंगे. क्योंकि जब मैं बिग बॉस में था, मुझे हमेशा ये बात दिमाग में रहती थी कि यार ये टेलीविजन में आएगा, मेरे मम्मी डैडी देखेंगे, मेरी रिलेटिव्स देखेंगे, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, नीलम देखेंगी, उनकी फैमिली देखेंगी, वो क्या सोचेंगे. सिंपल बात है, कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. तो मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि यार ऐसा मत बिहेव करो जिससे घर से बाहर भी निकलना है, राइट.
बिकॉज ये थोड़ा लोग कई बार सोचते हैं कि बिग बॉस खत्म हो गया बस ठीक है, मगर आपकी लाइफ तो चलेगी ना आगे, आप घर से बाहर निकलेंगे ना, और जो आपने किया है उसके लिए आप आंसरेबल भी होंगे, लोग जजमेंट करेंगे आपके बारे में। अब ओटीटी इतना स्पेशलाइज हो गया है कि उसमें फैमिली भी शायद नहीं देखेगी, तो हो सकता है जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो उससे भी ज्यादा अपने आपको फ्री फील करें कि क्या फर्क पड़ता है यार, हम तो ऐसा करेंगे, हम तो वैसा करेंगे, ये करेंगे। तो आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, मुझे थोड़ा डर है, बट आई मीन ईच टू हिज ओन, जो करने को तैयार है, जो देखने को तैयार है, हु एम आई टू जज इट। तो आई थिंक इट्स गोना बी, माय गेस इज कि जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं उससे ज्यादा ही होगा, इन टर्म्स ऑफ बोल्डनेस ज्यादा ही होगा मेरे हिसाब से। चलिए, थैंक्स लॉट, इतनी सारी बातचीत की, इतनी मजेदार बातचीत की कि आई वाज लाफिंग एंड स्माइलिंग एंड आई रियली विश मैं आपसे वन ऑन वन बेसिस पे जल्द ही मिल सकूं। जरूर, आई लुक फॉरवर्ड टू इट, आई लुक फॉरवर्ड टू इट। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।